हेलो टू ऑल माय सोल फैमिली। आपका स्वागत है। वेल, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज की हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत नाम कमाया है। क्या आपने ये गाना सुना है, ये भजन सुना है? तो तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो लेट्स वेलकम अभिलिप्सा पांडा टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार अभिलिप्सा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Namaste, namaste. I'm absolutely doing good and wishing you a very happy Durga Puja. Hope you're doing good too. यस, सेम टू यू। आई एम आल्सो गोइंग टू टेंपल टुडे, इसलिए मैं थोड़ा रेडी हुई थी। Oh, lovely. यस, थैंक यू। एंड आल्सो आई लर्नड 3 उड़िया वर्ड्स जस्ट फॉर यू। मैंने Sure. मैंने सीखा अपन केमती अछंती। इज इट ओके? Lovely. Yeah, absolutely. अपन केमती अछंती। Yeah, apana kemti achanti means how are यस, you? आप कैसे हो? Lovely. नो लिटिल बिट अबाउट दैट। So Abhilipsa, well, we are very much grateful to have you here. Thank And you so much. यस, थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए। आपने इतनी अच्छी अरे हमें भजन्स दिए। यू नो व्हाट, व्हेन वी लिसन टू योर भजन्स जो आपने गाए हैं अपनी आवाज में, यू डोंट नो वेयर वी आर नॉट ऑन दिस अर्थ देन, वी आर इन द एयर। thank you so much. That means a lot. या सो अभिलिप्सा, आज का हमारा जो पॉडकास्ट है देयर वुड बी मोर अबाउट कि आप यहाँ तक कैसे आए, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस जर्नी ऑफ सिंगिंग। सो कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट दैट? तो मैं जब 3 साल की थी तब से ही मैं म्यूजिक से इनफैक्ट आई शुड से आई एम कनेक्टेड विद म्यूजिक सिंस माय बर्थ as I have a very cultural background ओके। like my grandfather मेरे दादाजी he was a governor's awardee kathakar and he was very renowned kathakar of Odisha as well as my mother is Visharad in Hindustani classical vocals and Odissi classical dance. As well, my grandmother, my nanny, was a theater artist. My father is very much inclined towards art. So I got a bit in my genes. सब So आग uh, इकट्ठी होके अभिनेता में आ गई, राइट? सब आग लड़ी, राइट? not या। like that. When I was 3, I like जो विधिवत शिक्षा कहते हैं. I got into systematic learning. I first started with Odissi classical vocals, but due to some reason I couldn't continue with that. So then I switched to Hindustani classical vocals, ओके। and it's been more than 16 to 17 years. By now I'm 20, so it's been 17 to 18 years that I'm associated with music, or I should say, by birth I was associated with music. And my first guru, if I say, my nanny was my first guru. You must have heard about Ustad Allah Rakha. यस। जब उस्ताद जाकिर हुसैन पैदा हुए थे, he blew a cricket into his ears, into the यस। newborn baby's ears, as it was their legacy. Tabla was in their genes, and tabla playing was their legacy. So उस्ताद अल्लाह रखा उन्होंने एक क्रिकेट फूका था जाकिर हुसैन जी के कानों में. ओके। Just like that, my nanny blew Gayatri Mantra into my ears. So that is the very first music, or that is the very first association with the Almighty that I had. So as a वाह, newborn baby, I was associated with the Almighty. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आप क्या बचपन से ऐसे कुछ था कि आप स्कूल में भी, जैसे स्कूल में कुछ फंक्शन होता है ना, एंड वी पार्टिसिपेट, तो आपका ऐसा कुछ था कि आप जब पार्टिसिपेट करती थी आप वहां पर भी आप गाती थी? मैं सिर्फ गाती नहीं थी. मैं बेसिकली स्कूल में इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल डेज में इनफैक्ट मैं पहले डांस करती थी. आई एम मैंने आपकी अ वीडियो क्लासिकल. देखी है, मैंने आपकी वीडियो देखी है वो डांस वो वाली। हाँ, वो मेरी और मेरी माँ की डुओ वीडियो है. ओके। एंड वी लाइक टू डांस अ लॉट. लाइक हमारा ऐसा है कि
whenever we get time, अभी थोड़ा हौच पौच के चलते, we do not get proper time. But whenever we used to get time, we used to make collabs, like not proper collabs, I should say. I am a classical dancer, but because of being in a martial art Mm. line, I had to quit, not quit properly. I had to leave dancing, but dance is in my genes, so dance cannot go away from me. So whenever I get free time, I try to dance. I try to get immersed in that again. So initially मैं डांस करती थी, but बहुत बाद then I used to participate in competitions, in song Mhm. competitions, speech competitions. So बहुत बाद में my teachers said, we have an orchestra in our school, why don't you join that? I said, Mhm. I'm already in dancing group, how can I join this? So they said like हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि if a child participates in a single group, he or she is not allowed to participate in more than one groups. Mhm. So my teacher specially requested our principal that she will perform in both the groups. She will dance as well as she'll sing in our choir. वेरी नाइस टू हियर दैट कि आप स्कूल टाइम से ही एक्टिव थी पार्टिसिपेशन में, राइट? ओके। तो कभी किसी ने ऐसे बोला, आपके इस टैलेंट को पहचाना किसी टीचर ने कि तू तो बहुत आगे तक जाएगी, ऐसा कुछ हुआ कभी? अम, स्कूल में टीचर्स वैसे नहीं थे, लाइक उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, ऐसा हम्म। नहीं कि दे डिडंट सपोर्ट। हम्म। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। द थिंग इज दैट स्कूल में जब भी कोई बच्चा होता है, द मेन इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स स्टडीज, तो टीचर्स ने हमेशा थोड़ा सा पीछे से, जो बैकलॉग कहते हैं, दे पुल्ड मी बैक कि नहीं, योर सेंटर इज स्टडीज, यू हैव टू बी हम्म। स्टडी सेंटर्ड। तो हमेशा से ही मतलब इफ आई गेट एक्टिवली इनटू these या competitions during exams and all, तो टीचर्स कहते थे कि what about your studies, Abhilipsha, how will you manage about this, singing won't take you anywhere. तो मेरे टीचर्स, they knew, somewhere they knew that something will happen. टीचर्स को हम्म। पता होता है कि कुछ ना कुछ तो होना ही है, बट दे हम्म। ऑलवेज पुल्ड मी ताकि मैं स्टडी सेंटर्ड रहूं, एंड आई वाज स्टडी सेंटर्ड। एक किस्सा था व्हेन आई वाज इन 10th और हम्म। मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे। So I was a participant, like I was representing my district in the state level of governor's trophy. तो हम्म। मैं डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड आई वाज अमंगस्ट द क्लासिकल वोकल आर्टिस्ट्स। हम्म। एंड वो कंपटीशन मेरे प्री बोर्ड्स के दौरान था, मुझे याद है। जिस दिन कंपटीशन था, उस दिन मेरे ज्योग्राफी के पेपर्स थे, उसके पहले वाले दिन फिजिक्स के पेपर्स थे, और जिस दिन मैं जा रही थी, just after the exam, like after the competition, हम्म। मेरे इकोनॉमिक्स के पेपर्स थे। एंड माय प्रिंसिपल वाज सो सपोर्टिव। उन्होंने प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर री प्रिपेयर करवाए मेरे लिए, ऑफ फिजिक्स एंड ज्योग्राफी। और मैं रास्ते भर पढ़ते पढ़ते गई, एंड उस गवर्नर्स ट्रॉफी में I represented my district and I was the topper amongst all 30 participants. I was the governor's trophy awardee in Hindustani classical vocal in senior group. एंड मैं रास्ते भर गाड़ी में इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते गई थी। एज वेल मैं कंपटीशन के बाद फिजिक्स और ज्योग्राफी पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे को एक ही दिन में 3 एग्जाम्स देने थे, तीन एंड दैट एग्जाम टू अ दे दी। प्री बोर्ड, वाओ। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड फिजिक्स। सो ऑल द पेपर री प्रिपेयर्ड था, पर इट वाज टफर दैन अदर स्टूडेंट्स। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, नॉर्मल सी बात है, व्हेन योर फ्रेंड्स गेट समथिंग लाइक इन एडवांस देन यू, आपको क्यूरियोसिटी होती है कि वो कैसा है। तो आई गॉट द क्वेश्चन पेपर, लेकिन जो मेरे लिए बनाया हुआ था, आई डेंट गेट दैट। सो मेरे को एक आइडिया था कि हाँ, दीज क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर श्योर, और हम्म। आई डिड स्कोर गुड इन प्री बोर्ड्स। तो आई वुड तो ऑलवेज लाइक टू थैंक माई टीचर्स उन्होंने, एंड माई प्रिंसिपल या या वेरी हैप्पी टू। कि उन्होंने बहुत लाइफ, सपोर्ट किया। बात ये है कि लाइफ
ने जिसको बहुत आगे ले जाना होता है, उसके तो वैसे भी इम्तिहान होते रहते हैं। क्या बात है ना? बिल्कुल वैसे भी टेस्ट करती रहती है लाइफ उसको। तो या बिल्कुल ग्रेट टू बिल्कुल। हियर। सो आपको कोई ऐसा आई वुड से ओकेजन याद हो जहाँ पर आपने स्टेज पर, जब आप छोटे थे, स्कूल में थे, राइट, गाना गाया हो एंड यू फेल्ट सो पॉजिटिव कि यस दिस इज समथिंग आई विल डू इन माय फ्यूचर। आप एक तो आपने ये बताया कि आप बहुत बड़े लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया अपने स्कूल को, अपने एरिया को, राइट। अदर देन दैट एंड ऑल्सो आप ऐसा कुछ ओकेजन बता सकती हैं जहां पर आपने फर्स्ट टाइम स्टेज पर गाना गाया था, यू सैंग। अम, मैं कुछ 6 या 7 साल की रही होंगी व्हेन आई परफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज। हम्म। तब वहां पे मतलब ऑडियंस जब खुश होती है देन वो आपको पैसे देती हैं। ओह। और क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची थी तो है। आई डेंट नो वो लोगों का क्या बचपना था? की तरफ उनका अट्रैक्शन था या उन्हें हम्म। गाना अच्छा लगा था। आई गॉट माई फर्स्ट पेमेंट, हम्म। अनऑफिशियल पेमेंट। 100 रुपए का नोट आई गॉट दैट टाइम। सो आई वॉज हैप्पी एंड बच्चे होते हैं वो गुल्लक पे पैसे रखते हैं एंड आई वॉज ओह। लाइक I did put that 100 rupee note. I marked that note. Until date, I have that 100 rupee note. I haven't, मैंने उसे खर्च नहीं किया। तो वो हाँ। मेरी पहली कमाई थी, आई शुड से। एंड ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बिकम अ सिंगर और मुझे सिंगिंग लाइन में प्रोफेशनलिज्म अक्वायर करना है। आई वॉज हम्म। ऑलवेज स्टडी सेंटर्ड। मैं हम्म। अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। I'm pursuing BSc Zoology honors, हम्म। and I'm a third year student. तो हम्म। I've never seriously thought कि मेरे को सिंगिंग लाइन में ही प्रोफेशनल बनना है या I have to acquire this as my profession. आई जस्ट कीप दैट इन माइंड कि जब तक लोग सुनेंगे, जब तक लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे, मैं उन्हें सुनाती रहूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरूं, उन्हें उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मैं प्रोजेक्ट्स देती रहूं। तो सब हैंड इन हैंड चलता रहेगा। लाइक आई हैड इन माय स्कूल, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, एक्स्ट्रा हम्म। करिकुलर कहे तो ये चीजें भी साथ में चल रही थी। दीज आर पार्ट ऑफ एजुकेशन। जैसे स्पोर्ट्स आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है, ये Right. आपको एक्टिव होना, ऑल राउंडेड एक्टिव होना सिखाती है कि हाँ आप हर चीज, बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। जब आप एक हम्म। यंग या टेंडर एज से काफी सारी चीजों में, काफी सारी फील्ड्स में एक्टिव होते हो, वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। तो ये इसलिए मुझे, ये हो कराटे हो या कोई अदर कंपटीशन हो, I have been a state level debater as well as quizzed, a national level gold medalist in karate and a black belt holder. And You said you are gold medalist in karate. yeah, I'm a national मुझे level नहीं gold. मुझे नहीं लगता आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर कभी। आप खुद ही लोगों को उठाओगे। नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा मानना है कि मार्शल आर्ट्स आपको एक इनर स्ट्रेंथ, इनर कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है रादर देन नॉन मार्शल आर्टिस्ट। आप हम्म। हर चीज को एक्टिवली अप्रोच कर पाते हैं एंड इट्स यस। नॉट फॉर लाइक रैश फाइटिंग और ऐसा कुछ। आपको हम्म। रॉब नहीं दिखाना होता। अगर आप मार्शल हम्म। आर्टिस्ट हैं या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी भी स्पोर्ट्स में आप एक्टिव हैं, आप ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होते हैं यस दैट्स राइट। दूसरे लोगों से। तो गुड। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद कराटे सिंस 15 years. It's हम्म। been 15 years that I have been associated with karate and वो हमेशा से ही एक पॉजिटिव एनर्जी देती है और ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आई वोंट लूज एनीवेयर। तो यस। ये हमेशा से साथ रहा है। वेरी मच टैलेंटेड गर्ल वी आर टॉकिंग टू। और आपने जैसे बताया बिलिप्सा कि आप अभी स्टडी कर रही हैं, तो आप कॉलेज जाती हैं या ऑनलाइन स्टडी कर रही हैं? नहीं, मैं जाती हूँ। ओह। ड्यू टू सम रीजंस जैसे शोज और प्रोजेक्ट्स में या। एक्टिवली नहीं अटेंड कर हाँ। पाती हूँ, बट स्टिल आई अटेंड द क्लासेस एंड तो आई गो। मैंने जैसे आप कॉलेज में एंटर करती हो तो ऐसे लोग नहीं आते काफी भीड़ में इकट्ठे होके कि फोटो खिंचवाओ, हमारे साथ सेल्फी लो, ऐसे? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हुई लगूं कॉलेज हाँ। में।
सो हम्म मैं खुद राइड करती हूँ टू द हम्म कॉलेज एंड हम्म मैं मास्क और हेलमेट के साथ जाती हूँ। तो डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में जितने हैं सभी को पता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। रादर देन माय डिपार्टमेंट, लोग स्पैम करते हैं मेरे कॉलेज के हाँ ऑफिशियल आईडी में कि कौन से ओ डिपार्टमेंट में है, कौन से डिपार्टमेंट। सो दे हम्म हैड टू क्लोज देयर चैट सेक्शन ओ एंड rather than my department, no one else knows in which department I am. तो वो हमेशा जानना चाहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में हूँ। और हम्म इन केस मैं किसी से मिलती हूँ तो मेरा लुक ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बहुत अलग रहता है, तो लोगों को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड बाय द हम्म टाइम दे रिकॉग्नाइज कि मैं ही हूँ, आई पास बाय देम। तो स्मार्ट तो गर्ल बहुत बहुत कम प्रॉब्लम होती है। आई स्टिल गो मार्केटिंग और हाँ मेरा ऑफ स्क्रीन लुक बहुत डिफरेंट है ऑन स्क्रीन लुक से। हम्म तो लोग जब तक फेस स्टडी करते हैं और जब तक वो रिकॉग्नाइज करते हैं, मैं तब तक अपना काम निपटा के निकल चुकी होती हूँ। तक उनके दिमाग में चल रहा होता है, इसको देखा है कहीं पर, इसको देखा है। कहीं पर तो देखा है। और जब तक उनका दिमाग चल जाता है तब तक आप फुर हो जाते एग्जैक्टली, लाइक 95 हो। आउट ऑफ 100 पीपल यही इसी मशक्कत में रह जाते हैं। एंड 5 पीपल वो श्योर हो जाते हैं और दे कम टू मी। जैसे समटाइम्स आई रीच एयरपोर्ट, वहां पे स्टिल आई बी इन माय नॉर्मल लुक, वहां पे हम्म पहचान लेते हैं इवन इन माय मास्क। मैं वहां पे सोच में पड़ जाती हूँ, इन्होंने पहचान कैसे लिया, मैंने तो मास्क पहन रखा था, इन्होंने पहचाना कैसे। तो आई स्टिल ट्रैवल अलोन, लाइक समटाइम्स आई हैव टू ट्रैवल अलोन। तो या मुझे अपनी चीज कैरी करनी होती है। तो मैं लाइक मेक श्योर करती हूँ कि लोग पहचाने, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। आप पहचान बनाने के लिए ही कर रहे हैं, बट यस कुछ जगह होते हैं जहाँ पे आपकी लिमिटेशंस होती हैं। course we तो always have आपको the space yeah तो उस लिमिटेशन के दायरे में रह के आपको चलना पड़ता है। और अगर आप ओवर वहां पे एक्सप्लॉइट, मैं कह सकती हूँ, लाइक yeah अगर आप अकेले जा रहे हैं देन पीपल डू कम टू यू। और जब वो आपको पहचान लेते हैं, यू कैन नॉट डिनाई देम और यू कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक पिक्चर्स विद देम, बिकॉज यू, वॉट एवर यू आर बिकॉज ऑफ देम। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर इंसान को अटेंड करूँ, हर वो आदमी जो मेरे पास आता है मैं अटेंड करूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है अटेंड करने के चक्कर में फ्लाइट चली जाती है, तो मैं oh, कोशिश करती हूँ कि मैं yeah अपना नॉर्मल लुक कैरी करूँ। yeah I totally got it, totally got it। और मैंने देखा है कि आप ज्यादातर जो भजन हैं वो महादेव जी के गाते हैं। मैं आपसे उनके साथ कनेक्शन भी जानना चाहूंगी। आप बचपन से ही उनको मानते हैं? could you please tell us about that? या आई डू। हमारे जो कुल देवता हैं वो जटेश्वर महादेव हैं। हमारे जो ईष्ट देव हैं वो जगन्नाथ जी हैं, हरिहर। और हमारी जो गढ़ देवी हैं वो तारिणी माता हैं। तो लाइक मैं बचपन से ही उनके साथ कनेक्टेड हूँ। एंड द थिंग इज दैट बचपन से ही, सिंस आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, मंत्र हम्म उच्चारण के बीच में पली बड़ी हूँ। तो जब धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं बड़ी होती गई, कनेक्शन और गहरा होता गया। और ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर डेटी को पूजा करती हूँ या सिर्फ उन्हीं को मानती हूँ, नॉट लाइक दैट। मैं परम ब्रह्म पे विश्वास करती हूँ, निराकार रूप पे विश्वास करती हूँ। बिल्कुल आई बिल्कुल बिलीव दैट देयर इज एन एनर्जी, दैट देयर इज समवन अप डिवाइन अबव का देयर जो हमेशा आपके साथ हैं। बिल्कुल एंड ही ऑलवेज गाइड्स यू, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। यू आर गाइडेड बाय समवन एवरी टाइम। बिल्कुल सही कहा आपने। ही इज निराकार, उनका कोई आकार नहीं है, कण कण में है वो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली। ओके, तो आप हमें ये बताइए अम, कि जैसे आपका ये आपने जो रिकॉर्ड किया था फर्स्ट वाला आपका सॉन्ग हर हर शंभू, तो आप उस टाइम भी आप अपने स्कूल और कॉलेज में थी? और आपको किसने हाँ गाइड किया जी। ये रिकॉर्डिंग, ये स्टूडियो, ये सब कुछ, इन सब के लिए किसने गाइड किया आपको, या आपको खुद आपने रिसर्च की थी इस बात पर? नहीं, मैं जिस सॉन्ग क्लास में थी, मैं जिस सॉन्ग क्लास की स्टूडेंट थी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड इनटू अ रिकॉर्डिंग स्टेज। वहाँ के सर ने मुझे
रिकॉर्डिंग के लिए बोला। बाय देन आई डिडंट हैव एनी आइडिया रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्या हाँ। कैसे होता है। आई हम्म। वाज 12 बाय देन, मैं 12 साल की थी जब मैंने ओ, प्रोफेशनली किसी स्टूडियो में एंटर किया था। हम्म, और सबसे पहला मैंने रिकॉर्ड किया था एक चिल्ड्रन सॉन्ग रीजनल लैंग्वेज में। तो वो तो आप जरूर सारा गाएंगी। गरम वो तो जरूर गाएंगी। उड़िया, दैट इज उड़िया राइट? उड़िया भी है वो। Yeah, that is an Odia, and हाँ that was प्लीज। a children's song. यस प्लीज, आप मैंने मुझे उड़िया सुननी है वो। यस। बिल्कुल बिल्कुल। So the lines goes like this. सारा घर फुला में सारा सा सुंदरा, सारा घर फुला में सारा सा सुंदरा, ఇది సాకాశే আমি সাজা ফোটা, ఇది সাকাশে আমি সাজা ফোটা, অমূলা এক ফুলহারা, সারা ঘর ফুলা মে সারা সা সুন্দরা, सारा घर फुला में सारा सा सुंदरा, सारा घर फुला में सारा सा सुंदरा, सारा घर फुला में सारा सा सुंदरा. So this was the very first children's song that मेरा I मन कर recorded. रहा है कि मैं डांस करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छा सॉन्ग लग रहा है मुझे सुनने में, सारा गाना सारा। या। इसके लाइंस की मतलब ये है कि हम हेवनली फ्लावर्स हैं, हम स्वर्ग के फूल हैं, और हम हम्म। काफी सुंदर और जैसे ये बेनिवोलेंट और ब्यूटीफुल हैं हम। है और ना, हम हम बिल्कुल। और इस देश के आसमान में हम कभी मुरझाएंगे नहीं, हम हमेशा फ्रेश रहेंगे। इस देश के हम ऐसे फूल हैं, इस देश के आसमान के हम ऐसे फूल हैं जो कभी मुरझाएगा नहीं। तो यहाँ पे बच्चों को, यहाँ पे किड्स को डिपिक्ट किया गया है। तो हम्म। दैट वाज अ वेरी फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ माइन, एंड तब कैसेट्स चलती थी, सीडीज हम्म। चलती थी। So this was a compilation of songs and mine was there. Mine was a song there. तो ये सबसे पहले मैंने जब मैं 12 साल की थी, सबसे पहले मैंने तब स्टूडियो देखा था। एंड हम्म। हर हर शंभू जब रिलीज हुआ या जब रिकॉर्ड किया हमने, तब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स। ये 25th अप्रैल को सॉन्ग हमारा रिकॉर्ड हुआ। 23rd या 23rd अप्रैल, नॉट 25th, 23rd अप्रैल को सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ। हम्म। और हमने इसको रिलीज किया था May 5th 2022, जस्ट अ डे बिफोर माय एग्जाम। और अगले दिन मेरी केमिस्ट्री की एग्जाम थी। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, हम्म। इंटीग्रेटेड साइंस स्कूल में थी मैं। तो ओके। एक दिन बाद ही मेरे केमिस्ट्री के एग्जाम से आई वाज लाइक studying for my chemistry exam, and I was cautious, like I was there, my mind was there at the views, at the लोग क्या रिमार्क्स दे ऑफ रहे हैं, लोगों कोर्स, का कोर्स। रिएक्शन क्या है। या। तो मैं बार बार फोन स्क्रॉल कर रही थी एंड आई वाज स्टडिंग फॉर माय एग्जाम। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने धीरे धीरे पोक करना शुरू किया, और 1 मिलियन। मैंने बोला अच्छा, इन्होंने भी देखा है, ये भी देख रहे हैं। या। Then gradually it became like 1 million was a big thing for me, very big thing. मेरे को कोई आइडिया नहीं था what is YouTube, what is what. Like आपको पता होगा when we create a Gmail account for mail, तो वहाँ पे YouTube में आपका एक डिफॉल्ट सा चैनल बन जाता है। यस, यस दैट्स एंड राइट। आई स्टार्टेड द चैनल वेरी रैंडमली। वो मेरे पापा के नाम से था, आईडी वाज हिज, तो ऑफ कोर्स फोटो वाज ऑफ माय फादर्स, एंड नाम भी पापा का ही था। देन आई चेंज द नेम इनटू रॉकस्टार अभिलिप्सा पंडा। आई हम्म। पोस्टेड अ वीडियो फर्स्ट, दिस इसी सॉन्ग में मैंने एक एडिटेड वीडियो डाला था, और हम्म। इट गॉट गुड रिस्पॉन्स। देन मैंने बोला व्हाई नॉट यूट्यूब। आई या। ट्राइड माई हैंड्स इन यूट्यूब। मैंने बोला अब अशोक कुमार पंडा के नाम से तो चैनल चल नहीं सकता, लेट्स रीनेम इट। और बहुत रैंडमली आई नेम्ड द चैनल एज रॉकस्टार अभिलिप्सा पंडा। देन इट गॉट गुड व्यूज, बट 1 million is a very was a very very big thing for me. मोर देन यू Or एक्सपेक्टेड, लाइक मोर देन वी। absolutely. या, आई We टोटली never अंडरस्टैंड। expected that या। it will cross 1 million or it will reach up to 1 million. हमने बस गाना बनाया था up to people's expectations, जो people के expectation है, जो उनका
टेस्ट है, प्रेफरेंस है म्यूजिक को लेके, उसके हिसाब से हमने एक गाना तैयार करके दिया था। वी थॉट दैट पीपल विल लाइक इट। हमने सिर्फ इतना करके डॉट डॉट छोड़ दिया था। वी नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग कि इतने व्यूज मिलेंगे, इट विल गो वायरल एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं तब तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। बाय द एंड ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड मैं किसी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थी, नॉट इवन हम्म एक्टिव, मेरा अकाउंट नहीं था। हम्म I didn't have idea about Instagram and all. Just हम्म after Har Har Shambhu, I got into Instagram. I made an account there. I guess by now it is 2 year old. My account is 2 year old. हम्म और then gradually लोगों ने, मैं ट्विटर भी बहुत लेट से मैंने ये किया, when झारखंड के मिनिस्टर, in fact by then he was central minister, he came to हम्म felicitate me. And I took to the Twitter to retweet his tweeted thing to thank him. Like he congratulated me and tweeted and posted a photo. और मैंने उनको थैंक्स कहने के लिए रीट्वीट किया। मैं जब अकाउंट सर्च कर रही थी कि अकाउंट का नेम ये करना है, नीचे आ रहा है कि दिस अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन टेकन। मैंने बोला फिलिप्स के नाम से किसने ओके। अकाउंट ले रखा है? अच्छा। बाय देन जो मेरा अकाउंट था, मतलब बाद में मुझे पता चला पीपल हैव क्रिएटेड प्लेथोरा ऑफ फेक अकाउंट्स ऑन माय नेम। और लोग ढूंढ रहे हैं, लाइक द मीडिया पीपल आर एक्चुअली मैसेजिंग मी, मैम आपका ओरिजिनल आईडी कौन सा है? मैंने बोला मैं ट्विटर पे हूं ही नहीं, मैं ये हूं मैं ही भी नहीं, तो ये ओरिजिनल कहाँ से ये आएगा? प्रॉब्लम मुझे भी आई थी। ये मैं देख रही थी जब मैं आपको सर्च कर रही थी कि मैं राइट पर्सन से बात कर रही हूँ ना। यही है ना जिससे मैं बात करना चाहती आफ्टर हूँ। आफ्टर इंस्टाग्राम गेव हाँ। मी द ब्लू टिक, लोग कंफर्म हो गए कि नहीं ये मेरी अकाउंट है। और मेरे नाम का स्पेलिंग, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं स्पेलिंग के साथ। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो फेक आईडीज बनाते हैं उन्हें नाम की स्पेलिंग नहीं पता है, और नाम और सरनेम की स्पेलिंग नहीं पता है। हाँ तो वो हाँ। नॉर्मल सी बात है, वो जब फेक आईडी बनाते हैं वो नाम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। और मैं जब हम्म, अकाउंट देखती हूँ तो पता चल जाता है कि नहीं ये फेक आईडी है। जो मेरे नियर एंड डियर्स भी हैं वो भी देखते हैं, हाँ नहीं ये फेक आईडी है, ये तो उसके नाम का स्पेलिंग नहीं है। एंड आई एम वेरी हाँ। परफेक्ट, वेरी प्रॉपर एट माई स्पेलिंग्स एंड ऑल। सो मैं कहती हूँ मेरे नाम, मेरे को कुछ भी करो पर मेरे नाम का स्पेलिंग एकदम सही लिखो, वेदर इन माई सर्टिफिकेट्स और एनीथिंग। दैट्स द सेकंड थिंग, मुझे ये भी पूछना था। आपका नाम बहुत यूनिक है। ये नाम किसने रखा और ये नाम क्यों रखा गया, ये भी हमें बताइए आप। द नेम इज अभिलिप्सा। और हम्म अभिलिप्सा मेरे पापा ने रखा था नाम। अभिलिप्सा मीन्स फर्स्ट विश, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एंड वैदिक स्क्रिप्चर्स में इफ वी गो, तो अभिलिप्सा मीन्स द थर्ड आई ऑफ महादेव। ओ। इन दोनों को अविनाश कहते हैं, और तीसरे आंख को अभिलिप्सा। तो अभिलिप्सा। अभिलिप्सा ओके। है दिस मीनिंग, और ये मेरे पापा ने ही रखा था। बहुत एंड डीप मीनिंग है इस अब नाम की। और द फनी थिंग अबाउट माई नेम इज माई रीजन, जैसे अलग अलग रीजन्स में जाती हूँ मेरा रीजन वाइज नाम चेंज होते जाता है। वो कैसे? एंड वेरी रेयरली मैं देखती हूँ कि लोग मेरा नाम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, एंड दैट्स अ ट्रीट टू माय इयर्स। जब लोग मेरा नाम सही प्रोनाउंस करते हैं, दैट बिकम्स अ ट्रीट टू मी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यू प्रोनाउंस्ड माय नेम करेक्टली, दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट टू मी। तो लोग अभिलाषा, अभिलिस्पा, अभिलाप्सा, अलग अलग नाम, अलग अलग नाम। और सरनेम तो बहुत कॉमनली, पंडा को पांडा, पांडे, पांड्या, अलग अलग जिस इट्स रीजन में पंडा। जाती हूँ। इट्स या पंडा इट्स राइट? पंडा। तो आई एम रियली रियली सॉरी सॉरी बिकॉज मैं अभी पांडा बोल रही थी। सो इट्स नहीं, इट्स अभिलिप्सा एब्सोल्युटली फाइन। पंडा। एग्जैक्टली। ओके। वो भी अच्छी बात है, आपने ये चीज भी क्लियर कर दी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस किया जाए। इट्स वेरी वेरी तो इंपॉर्टेंट। इट्स मेरा फाइन नाम, लोग। आई वांट कि मुझे अंबर कहें। अंबर मीन्स स्काई, पंजाबी और हिंदी स्काई। में। बट हाँ, यहाँ पर स्पेशली हियर इन कनाडा यूएसए, एम्बर। या आई डोंट लाइक दैट। मुझे अंबर ही एम्बर। अच्छा लगता है बट वो मुझे एम्बर बोलते हैं। या So it's very दैट्स राइट। common there. या Or in fact, you Google up your name, it will also speak up your name as Amber. तो एम्बर। उसको फंक्शन ही ऐसा किया या गया है
बिल्कुल। It's functioned like this, that will pronounce your name as Amber and mine हम्म। as Abhilapsa or Abhilipasa. तो वो अलग अलग pronunciations होते हैं. तो तो अच्छा है हमारी ऑडियंस को आज पता चला कि आप एक्चुअली अपनी एग्जैक्ट नेम से ही जानना चाहेंगी, ना कि थोड़ा अप्रोक्सीमेट। या ये भी अच्छी बात हो गई, चलो। absolutely. या बहुत अच्छी बात हो गई। और वन मोर भजन आपका जो है, कर्पूर गौरम, तो वो जो आपने वो आइडिया लिया आपने कि मंत्रों को सिंग किया जाए, है ना, एक प्रॉपर उसमें, वो किसने दिया आइडिया, वो लिरिक्स किसने किए आपके लिए? मंत्रों को तो वेदों पुराणों से लिया गया है. हम्म। These have always been around us. तो जैसे नागेंद्र हाराय हो गया, वो शिव हम्म। पंचाक्षर से लिया गया है. कर्पूर गौरम हो गया. और जैसे सानंद मानन जैसे हो गया, वो वाराणसी नाथ की जो स्तुति है वहां से ली गई है. तो ये कंपोजिशन, ये पाइल जो किया गया था मंत्रों का, मेरे जो को सिंगर हैं उन्होंने ऑफर किया, कि उन्होंने मेरे कराटे टीचर के थ्रू मुझे ऑफर किया, बिकॉज आवर कराटे टीचर वाज आर म्यूचुअल. तो बाय हम्म। देन मैं उड़ीसा के एक रीजनल रियलिटी शो की पार्टिसिपेंट थी. और हम्म। the show, people actually uploaded one of my reels on Instagram and it हम्म। went viral. तो मैं अलग वे में सिंग करती थी, मैं अलग वे में गाती थी, लाइक आई वाज अ जैज सिंगर. तो हम्म। बीइंग अ क्लासिकल सिंगर मैं जैज गाती थी. तो उन्होंने उस वीडियो को डाला, तो थ्रू दैट वीडियो the guy who was singing along with me, he recognized, he came to know कि हम सेम होम टाउन से बिलोंग करते हैं. हम्म। And then he contacted my karate teacher to हम्म। give me this offer. उन्होंने मुझे बोला, मेरे कराटे टीचर ने बोला कि there is a song like this, गाना चाहोगी क्या? And I'm very much open to new things. मैं हमेशा नई चीजें करने के लिए eager रहती हूँ. I was like, हम्म। हाँ करते हैं. And by then I was on holidays, like not on holidays actually. I was on leave. मैं नवरात्रों के लिए घर में थी. एंड आई सेड देम कि अगर आपको रिकॉर्डिंग करवानी है तो आप अभी रिकॉर्डिंग करवा दीजिए, बिकॉज आफ्टर दिस आई विल बी बिजी टिल जून. मेरे बोर्ड हम्म। एग्जाम्स होंगे, आई वोंट बी फ्री. और उसके बाद बहुत लेट हो जाएगा. अगर आपको रिकॉर्डिंग करवानी है तो अभी करवाइए. एंड दैट इट वाज प्लान्ड विद इन 2 days. कॉम्पोजिशन वाज हाफ डन. तो पहला जो मुखड़ा है, मुखड़ा का कॉम्पोजिशन भजमन राधे, अगर आपने सुना होगा, इट इज हम्म। took from there. It is taken from there. We took it from there. And जो अंतरा है, जो मंत्र है, उसका कंपोजिशन हाफ डन था. He came to our house. हमने बैठकर डिस्कस किया एंड कंपोज किया. We together did the composition. और it came out good. उसके बाद he made all the music arrangements and all. और विद इन 3 to 4 days ये शेड्यूल हुआ कि हाँ इस दिन रिकॉर्डिंग रखना है. My nanny and my younger sister accompanied me for the recording. और उस दिन मैंने बोला रिकॉर्डिंग हो गई, शूट भी हो जाएगा. देन हमने 2 गाने रिकॉर्ड किए उस दिन, मंजिल केदारनाथ और हर हर शंभू. हम्म। और शूट के लिए तैयार ही बैठे थे कि लाइट चली गई. 4 घंटे उसी मेकअप में स्टूडियो के अंदर, गर्मी से घुटन हो रही है, गर्मी के मौसम में. अप्रैल का मौसम चल रहा है, अप्रैल का समर सीजन चल रहा है एंड हाँ। समर इज एट इट्स पीक. तो साड़ी में, खुले बाल में, गर्मी हो रही है, अंदर घुटन हो रहा है. इट वाज हम्म। लाइक वील कम बैक अदर डे. मैंने बोला हम्म। कुछ भी हो, आज ही इसको आज ही कंप्लीट करिए. करना है। कंप्लीट बोथ द शूट्स टुडे इटसेल्फ. हाँ। और इसके बाद मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी. आई हैव माय एग्जाम्स आफ्टर दिस. जो या। भी करना है बाय हुक और बाय क्रुक कंप्लीटेड टुडे इटसेल्फ, चाहे जितनी रात हो. हमारा जो स्टूडियो का लोकेशन था, दैट वाज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस. तो हम्म। खत्म कर देंगे, शूट खत्म होते होते इट वाज 10:30 PM. और तब तक हमने कुछ नहीं खाया, कुछ खाया पिया नहीं, वही सुबह जो खाना खाया था, ब्रेकफास्ट किया था. और हम्म। रात के 10:30 बजे वी केम आउट ऑफ द स्टूडियो हम्म। कंप्लीटिंग बोथ द प्रोजेक्ट्स. मैंने बोला हाश, आफ्टर ऑल टुडे इट इज कंप्लीटेड, क्योंकि इसके बाद आई डू नॉट हैव टाइम, मैं नहीं टाइम दे पाऊंगी, आई विल बी बिजी इन माई एग्जाम्स. Then या। he released the very first project on May 5th, 2022. And with Mahadev's grace, with Mahadev's blessing,
People gave their blessings and love to the project. Still, they are giving their love and blessings to this project. एक टाइम पे it was trending on number 1 across YouTube. हम्म और काफी बड़े बड़े लोगों ने लाइक whether it may be politicians, whether it's Bollywood stars, like हम्म I would like to mention 2 3 names particularly. यस प्लीज जैसे शिल्पा शेट्टी जी ने she ओह used this song in one of her reels when she visited बनारस. तो हम्म बनारस की गंगा आरती जब वो देख रही थी, she used Har Shambhu in her reel. And many people like Bharti Singh, she taught her son गोला, जिस अगर अगर आप या जानते होंगे, या तो जानती वो हूँ मैं उसको गा के सुना रही थी. शहनाज गिल was singing this to गोला. And हम्म my friends used to send these reels to me. ये बहुत अच्छा लगता है देख के जब हम्म आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है. पीपल रिकॉग्नाइज योर वर्क. तो हम्म कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा. टिल डेट पीपल आर गिविंग देयर showering their blessings and love, not just to this project but also every other project I release, एवरी अदर प्रोजेक्ट आई पोस्ट. मैं आशा करूंगी अपनी बेटी सोचे, अपनी बहन सोचे, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें. बिल्कुल जी बिल्कुल. You are such a talented girl and also you are down to earth. Of course, you deserve that, you know. थैंक You यू know. सो मच. Yes. And my last question to you is, मैंने देखा है आपके सॉन्ग्स में ज्यादातर you are you are in the traditional jewelry. आपका एक वो इंडिया का ट्रेडिशन भी कैरी करती है. इट्स नॉट लाइक आप गाना गा रही हैं या भजन गा रही हैं. यू ऑल्सो रिप्रेजेंट एंड कैरी इंडियाज ट्रेडिशन, जो कि मुझे बहुत आप पर प्राउड फील करवाता है उस चीज को थैंक यू लेकर. सो मच. हाउ डिड यू चूज दैट थिंग कि आपको इसी लुक में रहना, एंड आपने उस चीज को भी इतनी रिस्पेक्ट दी है, यू नो. Absolutely. My very personal and non-paid designer is my mother. तो ओह. जो लुक्स होते हैं वो ही डिसाइड करती हैं. लाइक हम्म आई एम नॉट इनटू ड्रेसिंग एंड ऑल. बचपन से मार्शल आर्टिस्ट रही हूँ तो आई हैव ऑलवेज बीन टॉम बॉय. तो हम्म आफ्टर बीइंग आफ्टर कमिंग इनटू दिस लाइन, जैसे प्रोफेशनली इनटू दिस लाइन, मुझे यस. ड्रेसेस खरीदने का या ड्रेसेस में इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ ये लेते हैं, दिस विल बी गुड फॉर शो एंड ऑल. उसके पहले नॉट इवन टिल डेट मुझे उतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ड्रेसेस में. वट हम्म एवर आई वेयर इज चोजन बाय माई मदर. और वो जो अटायर था वो भी मेरी माँ ने सिलेक्ट करके दिया था कि तुम ऐसा ऐसा पहनो. वट wherever I shoot or whatever project I shoot for, सबके लिए माँ मेरी ड्रेसेस डिसाइड करती हैं, ज्वेलरीज डिसाइड करती हैं. एंड लाइक वो उनका सिलेक्शन. आई समटाइम्स से हर व्हाई डिडंट यू बिकम अ डिजाइनर. ओह. और जैसे आपने कहा कि इंडियन लुक कैरी करती हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू फ्यूज थिंग्स अप. कि हम्म जैसे लोग ट्रेडिशनल जो हमारी जनरेशन है स्पेशली टर्म्ड एज जेन जी, वो हम्म ट्रेडिशनल चीजों को भूलती जा रही है और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कुछ और ही कर रही हैं. तो आई हैव ऑलवेज ट्राइड फ्यूजिंग दीज थिंग्स अप, ताकि लोग अप्रिशिएट करें हमारी ट्रेडिशनल चीजों को, हमारी और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज को. यस. हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी जैसे आपने देखा होगा, आई हैव अ पियर्सिंग ऑन देखा है. माय राइट साइड यस. एंड अ सेप्टम. लाइक सेप्टम का भी आइडिया आइडिया नहीं, इट वाज अ विश ऑफ माय मदर. उन्होंने बोला कि मेरा हमेशा से मन था कि तुम्हें सेप्टम पहनाऊं, बट तब टाइम था नहीं. दैट वाज नॉट द प्रॉपर टाइम. आफ्टर हम्म हर हर शंभू शी गॉट मी पियर्स्ड इन द सेप्टम. उन्होंने बोला कि तुम ये पहनोगी, नॉट सम दैट ऑर्डिनरी पियर्सिंग. दिस इज जैसे हम पहनते हैं. एंड शी इज अप टू लाइक शी इज सेइंग दैट तुम लेफ्ट में भी पियर्सिंग कराओ. तो और हमारे में उड़ीसा में स्पेशली तीनों साइड पियर्सिंग होती है. जैसे यहाँ ओके यहाँ और यहाँ, मेरी दादी की भी थी, यहाँ ओके यहाँ ओके. यहाँ. या अ, तीनों जगह पियर्सिंग होती है. एंड दैट हैज अ रीजन. हमारी व्हाट इज बॉडी द में जो रीजन? जो भी या हमारे जैसे बोलते कि females are into very much workload, like they have a lot of workload.
तो हम्म। उनको काम रखने के लिए द नॉस्ट्रल्स हैव लाइक, जैसे नाक में अगर आपको कोई भी चोट लगती है तो सर तक दर्द जाता है। यस। तो नोज हैव लॉट ऑफ कनेक्शंस विद योर ब्रेन। तो हम्म। आपके बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, दे आर डायरेक्टली हम्म। और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। तो जैसे पैर में शादी के बाद बिछिया पहनते हैं, और कमरबंद, हम लोग कमर पट्टी पहनते, कमरबंद पहनते। आई स्टिल वेयर वन। एंड नोज पियर्सिंग होती है, दैट इज बेसिकली आपको काम रखने के लिए। जैसे आपने भैंसों या सांडों को देखा होगा, बीच में यहाँ पे ऐसे खींचने के लिए, जो बहुत या। अग्रेसिव सांड होते हैं, उनको यहाँ पे हम्म। ऐसे छेद करके उन्हें लगाम लगाई जाती है, ताकि वो यस। काम रहे, ज्यादा एग्रेसिव ना हो। तो ओ। फॉर योर कामनेस, आपको आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली, आप वर्कलोड में ज्यादा बर्डनाइज ना हो, उसके ओके। लिए पियर्सिंग होती है। जैसे हम्म। ईयर पियर्सिंग कहते हैं, ज्ञान की नाड़ी यस। कहते हैं। बचपन में टीचर्स हमें कान पकड़ के उठक बैठक कराते थे। आजकल हाँ। तो चलिए पनिशमेंट नहीं होते हैं। बचपन में हमें कान पकड़ के उठक बैठक कराते थे, ताकि हमारे जो मेमोरी सेल्स हो, मेमोरी मसल्स हैं, वो एक्टिव हों। बट पीपल से कि ये तो हाइपोथेटिकल चीजें हैं। आवर कल्चर, आवर रिलीजन इज नॉट जस्ट हाइपोथेटिक, इट हैज थीसिस, साइंटिफिकली प्रूवन भी इट है। हैज लॉजिक। और यस। अगर हम स्क्रिप्चर्स को देखें, तो हम छोटी छोटी चीजों, जो छोटी छोटी चीजें हम बहुत माइनरली उसको माइनर वे में उसको ट्रीट करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो फुल। हम देख नहीं पाते हैं। और हम आज के मॉडर्नाइजेशन में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि हम देखना ही नहीं चाहते हैं, एंड वी टर्म इट एज हाइपोथेसिस। तो एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग वी डू हैज अ रीजन बिहाइंड इट। और हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कुछ रीजन के चलते ही उसको बनाया है। हम्म। एंड जो भी चीज हम करते हैं, आई ट्राई कि हमारी जनरेशन वापस रिवाइव हो। मैंने देखा है अब धीरे धीरे हमारी जनरेशन रिवाइव हो रही है। इट इज सही है। गेटिंग स्लोली इंक्लाइन टुवर्ड्स आवर कल्चर। वो जानना चाह रहे हैं कि हमारा हम्म। कल्चर क्या है। और देखकर अच्छा लगता है कि जहाँ पे कुछ बच्चे क्लबिंग एंड डांस पार्टिंग में लिप्त हैं, वहीं कुछ बच्चे कीर्तन में भी आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट। हम्म। रिसेंटली मैं कॉलेज में थी, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स इंसिस्टेड मी टू अटेंड आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेशन। देन आई वाज लाइक, मैं जाके क्या करूंगी? देन शी वाज लाइक, चलो अच्छा लगेगा। मैंने बोला ओके लेट्स गो। एंड देयर आई सॉ स्टूडेंट्स ऑफ आवर एज हम्म। अटेंडिंग कीर्तन एंड डांसिंग टू भजन्स। तो वो बहुत वेरी। बड़ी बात थी कि बच्चे जहाँ पे पार्टी और क्लबिंग जा रहे हैं, दे आर इनटू डिवोशन, दे आर इनटू गॉड। देख के बहुत अच्छा लगा कि जनरेशन इज रिवाइविंग अगेन। वो या। सेलिब्रेट कर रही हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट कर रही हैं। वेदर इट माइट बी आउट ऑफ ट्रेंड, एटलीस्ट वो सेलिब्रेट करें एंड हम्म। गेट अवेयर। धीरे धीरे सेलिब्रेट करते करते ही वो अवेयर हो जाएंगे कि हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हमारे कल्चर क्या है। तो वो देख के अच्छा लगता है कि दे आर कमिंग बैक स्लोली। वो वेरी धीरे धीरे स्लोली हमारे कल्चर की तरफ वापस से इंक्लाइन हो रहे हैं। वेरी नाइस। आई वुड से कि आपके अंदर ये चीजें, आपकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है ना। You are talented, having strong roots, inclined towards your traditions, respect your culture. ये सब एक पर्सन में होना बहुत मुश्किल होता है, and I'm talking to a girl who is having all these qualities, man. So दैट proud of मीन्स अ you. लॉट टू मी। थैंक यू, आप ये थैंक यू सो बताइए मच। कि आप मेरे पास कनाडा कब आ रही हैं, कनाडा और यूएस कब आ रही हैं हमारे पास आप? Very soon, very soon. I had my tour planned. But due to some reasons, you might be knowing, Florida is receiving floods. So हम्म। I guess in between this period, my tour will be rescheduled. I don't think Canada to US will be possible. As soon as I have my tour planned in Canada, I will surely inform you, Yes, whether ma'am. in Toronto, whether in Ontario, wherever. और मैं जरूर आपसे मिलूंगी। Yes, yes, please. और माय लास्ट क्वेश्चन इज, आपका अभी फ्यूचर को लेके क्या प्लान है? क्या आपकी ये सिंगिंग में आप आ गई हैं और आपने इतने अच्छे हमें भजन
और सॉन्ग्स डिलीवर किए हैं, क्या आपको लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, आपको इसको अभी मेंटेन भी रखना है और आगे जाना है? हाउ डू यू फील अबाउट दिस फेम? Absolutely. When people give you so much of their love and blessings, they don't expect actually, पर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो कि जो प्यार वो दे रहे हैं, जो आई वोंट एवर बी able to return them what they have given me, and I won't ever return them. I'll always want to be indebted. I'll always remain indebted to them, Hmm. and I'll forever be indebted to them for whatever they have given me. And हाँ, a sake of responsibility comes to you कि आपको उनको अच्छे कंटेंट्स देने हैं और Mhm. ऐसे जैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने मंत्र हैं मैं उनको लोगों के सामने लेकर आ सकूं। अभी आई हैव वर्कड ऑन महाकाल भैरवाष्टकम, नॉट Hmm. काल भैरवाष्टकम, महाकाल भैरवाष्टकम, जिसे हम Okay. तीक्ष्ण दंष्ट्र करालाष्टकम भी कहते हैं। तो Hmm. दैट इज वेरी रेयरली संग बाय पीपल, क्योंकि उसमें ताल का थोड़ा इधर उधर है और Hmm. वो बीज मंत्र आप कह सकती हैं। तो उसके ऊपर काम चल रहा है एंड आई हैव started working on other language projects. जैसे recently I released a Telugu project. Very Hmm. soon another Telugu project will come. स्वामी अयप्पा का project है वो, You speak and Telugu within too? four You speak I Telugu? can no, I don't speak Telugu. I can understand more than eight Indian languages, and I speak Odia, Bengali, Marathi, not properly Marathi, Assamese, Punjabi. पंजाबी भी Uh, बोल हाँ पंजाबी जी, बोलनी पूरी आती है? बोलती। हाँ जी, हाँ वाह! जी, पूरी दैट्स पूरी ग्रेट। समझ आती है, बोलनी भी आती है। वाओ, At present, ग्रेट। I'm staying in Chandigarh itself. ओह, ओके, ओके, साउंड्स गुड। So या, I can understand more than eight Indian languages, and I can sing in eight languages, eight Indian languages. So वेरी नाइस। Hindi and Odia are must because Odia is my mother tongue, and Hindi is general. Punjabi, Marathi, Gujarati, Marwadi, Telugu, Ohmiya, Bengali. टुडे आई केम टू नो मोर अबाउट यू। आपके सॉन्ग्स तो हम सुनते ही हैं, बट आज मुझे पता चला कि जितना हम समझते हैं, आप तो उससे भी टैलेंटेड हैं। बस सब आप लोगों का आशीर्वाद। आप अभी हम इसको अपने इस पॉडकास्ट को आज समाप्त करते हैं आपके एक बहुत ही अच्छे भजन से, विच इज कर्पूर गौरम, इफ आई एम सेइंग इट राइट, दैट कैन यू प्लीज रिसाइट Karpura दैट? Gauram is Harar Shambhu itself. Harar Shambhu में Karpura ओह, Gauram था. यस प्लीज। Karpura Gauram Karvataram Sansara Saram Bhujagendraharam Sada Bhavam Bhavani Sahitam Namami हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव. Thank you so much for having me here. Thank you, Abilipsa, for your precious time. We really appreciate that. And also, we bless you कि आप और भी आगे बढ़ें और इंडिया को और बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करें। We all आप हमारे ऐसे ही आशीर्वाद करते आपके रहिए. साथ हैं। Thank you so much. Thank you so much.